ओके फाइन, सो आई विल सॉल्व इट। ये हमारा न्यूमेरिकल था और अकॉर्डिंगली इसका सॉल्यूशन अपन को सुपरपोजिशन लगाना है। सुपरपोजिशन का हमने प्रोसीजर बता दिया था, क्या क्या करना रहता है अपन लोगों को। द question wants in this question what is required is you have to find out the current in the branch BE. Okay, so what do we do is we have to consider the effect of each of the sources uh, one by one. So once you are considering this source, you have to deactivate this source. So how we are going to deactivate it? This is a voltage source, 5 volts voltage source. So how are we going to deactivate this source? Muskan, can you tell me? Ma'am, first we will remove the battery number. We can remove any either of battery, and we will reconstruct the that whole Circuit. construction. Yes, ma'am, हाँ. circuit. So how are you going to replace this 5 volts battery? Ma'am, we will just Yesterday I remove have it and we will draw the circuit. no beta, that is not the procedure. I have yesterday only told you कि if it is Short a circuit. voltage source, as we can see, it is a voltage source, it needs to be replaced by its internal resistance. So the voltage source का internal resistance is 0, that means a short circuit needs to be kept here, है ना? So once you are considering 10 volts voltage source, so for that we have to deactivate the 5 volts this wala source and we are replacing it with a short circuit, and we will be reconstructing the circuit. It would be looking something like this. And here was our source. We are just replacing it with a short circuit. Now here it is 15, this is 3, 3 and 5, and this is the 10 volt source. This is ohms, ohms, ohms. Okay, now what is the thing which you have to see is source की वजह से the effect in this particular branch. Okay, so as we can see that there is a current which is flowing, like here it would be flowing, and then here it will get divided. So which means that this branch and this branch are in parallel. They are in parallel combination. So you need to find out what is the equivalent resistance of this particular thing. That is 15 resistance is in parallel with 6 ohms resistance, because these two are in series. So 3 plus 3 becomes 6. Yeah, tell me. मैम कुछ बोलो लोग बेटा। लीव करने के लॉबी में हैं। कौन है लॉबी में? यहाँ पे तो कोई नहीं दिख रहा लॉबी में। देखो लॉबी में होता है ना तो मैसेज आता है, इसमें कोई मैसेज नहीं है लॉबी का। वो एग्जिट हो गए होंगे, उनसे बोलो फिर से ज्वाइन करें। इसमें मैसेज आने लगता है ना। देयर इज नोबडी इन द लॉबी। राइट, so 15 and 6 ohm are in parallel. तो 15 and 6 ohm का आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो क्या आएगा आपका? 15 into 6 divided by 15 plus 6, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इट विल बी कमिंग ऑन 4.26 ohm. 428 ohms है ना। So now your circuit is just having two resistances. This is 5 ohm resistance and here is 4.28 ohm resistance, and this is a 10 volts battery. Now the current, only one current is flowing. I will name it as current I1, and through this particular resistor, what is the current flowing? And through this particular resistance, what is the current flowing? Can you tell me? Shubhi, tell me. Shubhi Saxena. Shubhi Saxena, please, can you unmute yourself? Shubhi. You are present?
मनीष वानखेड़े, यस मैम। या मनीष बता बेटा, इस वाली रेजिस्टेंस और इस वाली रेजिस्टेंस में से क्या करंट फ्लो होएगी? 1.08 ओम एम्पियर। 1.08 एम्पियर। वेरी गुड, करेक्ट है ना, क्योंकि दोनों ही सीरीज में तो सेम ही करंट फ्लो होगा, ठीक है ना। और I1 की वैल्यू क्या होगी? वोल्टेज, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस, है ना। वोल्टेज कितना है? 10 डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस कितना है? 5 प्लस 4.28 and you will get the answer as 1.078 amperes, and that is the our agenda is to find out the current in this particular branch. So it is, this is the B and the E, okay na. So the current is in the direction of the current is in this direction only, and it is 1.0. So we can here we can notify that from B to E is the direction of this current I1 because of the source 10 volts battery. Okay, next step we have to consider this 5 volts battery and we have to deactivate this 10 volts ka battery. At that instant of time, Shivam Patel. यस मैम। हाँ बेटा, ये बताएं, अभी 10 वोल्ट्स को अपन लोगों को डीएक्टिवेट करना है तो क्या करना पड़ेगा? मैम शॉर्ट सर्किट कर देंगे सर। वेरी गुड, शॉर्ट सर्किट कर देंगे और नया सर्किट ड्रॉ आउट करेंगे, है ना। हम यहाँ पे लिख देते हैं कंसीडरिंग 5 volt source, the circuit would be redesigned and it would look something like this. Here was your battery, we have short circuited it, and here is your the two resistances, and this is the voltage source in consideration 5 volts, 3, 15, 5 ohms. Okay, so this is the point B and the E. As we can see that these two are in parallel, 5 and 15 are in parallel. So give me its equivalent resistance. 3.57. It would be 5 into 15 divided by 5 plus 15 is 3.75 ohms. Okay, so drawing this we get 3.75 ohms resistance. This is 3 and 3, we can make one only, we can make it one resistance only na, and we can delete this and we can make it what should be the value of this resistance? 6 ohm. Tell me. 6 Six. ohms है ना, 6 because ohm. these two are in series. So 6 ohms, 5 volts battery. Now we can identify what is the current through this particular branch. What is the current through this particular branch? Who is going to tell me? R net is 9.75. I equal to V by 5 upon 9.75. 0.5. Who was saying this? 0.51. Sarvesh Mishra was this? Yes ma'am. Just a minute. सर्वेश मिश्रा। हाँ बेटा सर्वेश, फिर से बताओ क्या बोला तुमने, क्या करंट मैम यहाँ से फ्लो हो रहा है? मैम पहले नेट इधर से रेजिस्टेंस अभी निकाल के नेट रेजिस्टेंस निकाल लिया तुमने, ये दोनों का जोड़ दिया तो कितना आ गया? 9.75 आ गया। 9.75. और तुम्हारा करंट कितना आ गया? करंट कितना फ्लो हो रहा है? इसमें से भी सेम करंट फ्लो हो रहा होगा, इसमें से भी सेम करंट फ्लो हो रहा होगा। Yes, ma'am. तो अभी मैं इसको इसका नाम मैं I1 डैश रख देती हूँ, ठीक है ना, और इसको डायरेक्शन में ऐसे कर लेती हूँ, और I1 डैश की वैल्यू कितनी होगी? टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि 9.75। तो आंसर आया मेरा 0.51 और इसकी डायरेक्शन भी कैसी है? फ्रॉम B to E only this. ठीक है ना। तो जो नेट इफेक्ट है, जो नेट करंट है वो क्या है? इन दोनों का सम ही है। नेट करंट जो है इन दोनों का सम ही है, अलग अलग तो है नहीं, है ना। तो आप उसको जोड़ेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। कितना आएगा करंट आपका? पहला वाला जो करंट था I1 प्लस I1 डैश, इसका नेट करंट है, यानी कि 1.078 प्लस 0.513,
इसका आंसर कितना आएगा? 1.583. 1.591. हाँ 1.591. 591. ठीक है, ठीक है ना. सो दिस इज द बेसिकली दोनों की ही वजह से जो करंट की डायरेक्शन है वो B to E ही है. तो हमको फिर फाइनल में इसको ऐड करना पड़ेगा. 1 एम्पियर आपका टोटल नेट करंट इन दिस पर्टिकुलर ब्रांच आ जाएगा. ठीक है, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू. अगर दोनों की डायरेक्शंस अलग अलग आते तो हमको सब्सट्रैक्ट करना पड़ता नेट करंट. एवरीबडी अंडरस्टूड हाउ टू अप्लाई द ये सुपरपोजिशन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I will Yes, give you one ma'am. more question, and I will see. ठीक है, ये हमारा नेटवर्क है. आपको इसमें सुपरपोजिशन अप्लाई करना है और यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द करंट थ्रू द 10 ओम रेजिस्टेंस. करें, बताएं, और उसका डायरेक्शन भी बताना है. मैम 2 एम्पियर्स आ रहा है. किसने बोला अभी आंसर? मैम श्री. श्रेय अवस्थी, 2 एम्पियर्स. ओके, और कोई बच्चे का आंसर क्या आया?
Ma'am, 80 ampere, 18 ampere. SP, who is SP? Ma'am, Shivam Patel. शिवम पटेल, ओके. और कोई स्टूडेंट? निलय, निलय आनंद. मैम 2 ampere और something is there. पलक काटुलकर, पलक काटुलकर. You are present, पलक. पलक, पलक काटुलकर. हम 2 ampere. सौम्य आई सेइंग 2 ampere. Sara, Sara's answer is also 2. 2 ampere. Yes, ma'am. 2 ampere चलिए, and I will solve. I will solve now, okay? सबसे पहले you have to consider one source, okay? So I am first considering this source and deactivating this 30 amperes को, है ना? 30 ampere क्या है अपना current source है. So what you will be doing? Considering, your statement is considering 60 volts source. ठीक है? So we have 60 volts का battery. And then we are deactivating this. This is a current source. So I am going to replace it with the, tell me. Open open circuit. circuit. Correct, open circuit. This is 10 ohms. This is 20 ohms. This is 60 volts. And I am replacing it with an open circuit. My agenda is to find out what is the current in this particular this thing. है ना? So we can easily do it. We can easily do it. You just need to find out what is the current flowing in this particular branch. Okay. So it would be what? 60 divided by 30. 60 divided by 30, you will get what? Current I1 will be 60 by 30, which is nothing but 2 amperes, and flowing in the directions. I am just naming this points as A and B for me to identify the direction. So it is flowing from A to B. Okay. Or we can also apply the voltage division rule. This is very simple. Okay, very simple. What is it? What do we do? It is voltage division में क्या होता है? जो भी आपका नेट वोल्टेज जैसे इसमें से निकालना है तो क्या करेंगे 60 इंटू जिससे भी निकालना है आपको वोल्टेज उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिवाइडेड बाय दोनों का सम यानी कि 30. ठीक है ना? तो कितना आएगा? 2 वोल्ट्स आएगा. अगर मुझे इस वाले रेजिस्टेंस में से निकालना है, इस वाले इसके अक्रॉस में से निकालना है करंट, तो भी सेम टू सेम 60 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 30 कितना आ जाएगा? तो ये 4 वोल्ट्स. बेसिकली हम लोग वोल्टेज डिवीजन जब लगा रहे हैं, जब हम लोगों को इसका क्या करना है, फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द वोल्टेजेस अक्रॉस इट, एंड हम उसके रेजिस्टेंस के साथ उसको मल्टीप्लाई करके वी कैन आइडेंटिफाई द करंट थ्रू दैट पर्टिकुलर ब्रांच. ओके, that is your voltage division rule. When we have to find out what is the voltages across this resistance and this resistance, we can do it with the voltage division. And
आप तभी भी आसानी से इसके अंदर से करंट फाइंड आउट कर सकते थे, ठीक है ना। नेक्स्ट इज व्हेन वी आर कंसीडरिंग this 30 ampere source and we are deactivating this 60 volts का battery. Okay, so we have to redraw this circuit. So when you're considering 30 amp source, we have to deactivate this source and we have to consider this 30 ampere ka current source only, and the other resistance is this wala 10 ohms, and I am marking these terminals A and B for my convenience to identify the direction of the current. Now here I can easily apply the current division rule. Current division, what does it say? अगर इस वाली ब्रांच में से करंट आपको फाइंड आउट करना है तो जो नेट करंट है इनटू जिस रेजिस्टेंस में से निकालना है उसके ऑपोजिट वाला रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय दोनों का सम, यानी कि 30। तो ये कितना आ जाएगा आपका 2 एम्पियर्स का करंट, ठीक है। सॉरी नॉट टू 20 एम्पियर्स, गलती हो गया, 20 एम्पियर्स का करंट फ्लो हो रहा है और 20 एम्पियर्स का करंट फ्लो कहां से हो रहा है? फ्रॉम ए टू बी ओनली, ठीक है। एंड आई विल नेम दिस करंट एज I1 डैश। अब दोनों में मुझे दिख रहा है कि दोनों में वो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में ही जा रहा है, वो दोनों का सम होगा Oh, I'm sorry. This is not from A to B. This is from B to A, है ना? From B to A, ठीक है ना? तो नेट करंट क्या होएगा? This would be subtraction of the two. So subtraction of the two बोले तो 20 minus 2 यानी कि 18 एम्पियर्स का नेट करंट फ्लो होएगा, ठीक है। और कहाँ पे उसकी डायरेक्शन एक्चुअली में ऐसे में फ्लो हो रही है, फ्रॉम बी टू ए फ्लो हो रही है, क्योंकि ये इसकी पोलैरिटी के साथ ये नेट करंट का पोलैरिटी जाएगा। ओके, अभी अगर आपको इसको इफ यू वांट टू कंफर्म इट, सो व्हाट कैन यू डू? यू कैन यूज आइदर द केवीएल और द केसीएल, और दोनों को ही सोर्स को साथ में रख के आप उस ब्रांच में से करंट को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग वो भी करके देखिए, उससे करके देखिए, केवीएल लगा लो या केसीएल लगा लो, जो तुम्हें कंफर्ट लगे। केसीएल लगा लो, एक ही नोड है, एक इक्वेशन आ जाएगा, आप आराम से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है? केसीएल तो अभी तक सबको अच्छे से सॉल्व करना आ चुका होगा ना? यस मैम। हाँ, तो बताओ फिर मुझे क्या आंसर आएगा। केसीएल में कुछ ना करना, यहाँ पर एक नोड आ जाएगा, तो दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय 20, यहाँ वाला पोटेंशियल डिवाइडेड बाय 10, और यहाँ पे तो करंट का है ही आपका 30 एम्पियर्स को, उनको तीनों को जोड़ोगे, इस पोटेंशियल की वैल्यू आइडेंटिफाई करोगे और इधर से जो करंट आ रहा है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। सभी बच्चे करेंगे और यू हैव टू सेंड द स्नैपशॉट इन द चैट बॉक्स, आपने केसीएल अप्लाई करके इसको सॉल्व किया।
राहुल वर्मा, राहुल वर्मा, यस मैम। राहुल कर रहे हो ना सॉल्व? मैम वहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे। तुम क्या ट्रैवल कर रहे हो क्या? यस मैम। रास्ते में चलते चलते तुम्हें कैसे समझ में आएगा राहुल बेटा? मैम थोड़ा एक इतने क्वेश्चन multitask- दोबारा रिपीट कर दीजिए। हैं? कौन सा कर दे? ये वाला क्वेश्चन दोबारा बता दीजिए मतलब। तुम सुन रहे हो ध्यान से कि तुम घूमने में तो नहीं लगे हो? वो मैम कॉलेज आ रहा था। अच्छा चलो मैं बता रही हूँ। ये जो इससे करा है ये समझ में आ गया, सुपरपोजिशन से करा है वो समझ में आ गया तुमको? हाँ मैम। अभी तुमको केसीएल से नहीं आया करना, ये कह रहे हो? तुमने ट्राई नहीं किया, तुमको कहाँ से आएगा? तुमको खुद ट्राई करना पड़ेगा उसको, कॉपी किताब लेके ट्राई करना पड़ेगा आपको। क्या करना है? एक ये यहाँ पे नोड आ जाएगा, ये नोड पे अपन इक्वेशन लिखते हैं ना, ये वाला हमारा सर्किट है जो, ये हमारा जो सर्किट है इसके अनुसार ये यहाँ पर एक नोड आएगा आपका, है ना? उसके अनुसार हम यहाँ पे नोडल इक्वेशन लिख देंगे ना बेटा। दिस इज फॉर दैट इंस्टेंस मैं इसको मान रही हूँ VA मान लिया मैंने, तो इसके मेरा क्या हम कंसिडर करते केसीएल में सारा का सारा करंट्स आउटवर्ड फ्लो हो रहा है ना। मैंने इसको नाम दे दिया I1 करंट, ये I2 करंट है ये वाली ब्रांच का, और ये वाली करंट I3 है। तो केसीएल क्या कहता है? I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0 होना चाहिए। I1 की वैल्यू कितनी होगी आपकी? VA माइनस 60, VA माइनस 60 बाई 20। I2 की वैल्यू तो 30 एम्पियर करंट दिया ही हुआ है तो प्लस 30, और IC की वैल्यू है VA बटे 10, इट इज इक्वल टू 0। इसका फाइंड आउट करो, VA की क्या वैल्यू आ रही है बताओ? सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तब आएगा। मैम 180। कितना आ रहा है? 180। किसने बोला 180? मैम 180 वोल्ट, 180 वोल्ट। सौम्या, है ना? कितना आएगा? 180 वोल्ट्स आएगा आपका, है ना? अब ये 180 वोल्ट्स यहाँ पे आ गया। तुम्हारा एजेंडा है कि इस वाला ये I3 करंट तो आइडेंटिफाई करना था ना, 10 ओम्स वाला करंट, ये फाइंड आउट करना था ना अपन लोगों को। VA की कितनी वैल्यू आ रही है आपकी? 180। 180 मैम। ठीक है, ठीक है। तो करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? करंट I3 would be equals to what? 180 VA by divided 10. by, that is 18 amperes current. मैम मेरा जो Okay. VA आ रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है, तो उसका मतलब क्या होगा? किसका आ रहा है नेगेटिव में? मेरा मैम नेगेटिव में ही आ रहा है। किसका आ रहा है नेगेटिव में? नाम तो बताओ। राज आर्यन। सर्वेश। राजा। मैम सर्वेश। सही है ना? नेगेटिव आ रहा है। कैसे? सही है ना? सही है ना? नहीं, रुको डायरेक्शन ऑफ एक करंट मिनट, उल्टा हो जाएगा ना? एक मिनट। सर्वेश, यस मैम। सर्वेश, हाँ बताओ मुझे, तुम्हारा VA की वैल्यू कितनी आई है? -180 आई है क्या? यस मैम। यस तो मैम। यहाँ पे -180 आएगी ना। तुम लोग भी इतने गधे हो, मैं इसीलिए 4 बार पूछ रही हूँ तुम लोगों से। सभी 180 180 180 कर रहे हो।
-180 होगा ना यार बेटा, तभी तो तुम्हारा आंसर आएगा यहाँ पे -180/10 यानी कि 18 एम्स माइनस में। इसके अनुसार हमारी डायरेक्शन ऑफ करंट ये वाली है, यानी कि ये डाउनवर्ड्स जा रही है, लेकिन हमने अब भी आइडेंटिफाई किया है कि अपवर्ड्स में एक्चुअल करंट। तो माइनस का मतलब ये है कि तुमने जो डायरेक्शन अज्यूम करी थी उससे ऑपोजिट में, यानी कि अपवर्ड्स में ही है करंट। समझे? यस सर। है ना? आप लोगों से मैंने कितनी बार पूछा था इसकी वैल्यू आ रही है 180 180, सबने बोला 180, किसी ने नहीं बोला -180 आंसर आ रहा है। किसी ने बोला था तब? देखो ये छोटी छोटी मिस्टेक के कारण आपका आंसर गलत हो सकता है। ओके, तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट दैट। समझ में आ गया सबको कि हमने ये कैसे आइडेंटिफाई किया कि डायरेक्शन ऑफ करंट ऑपोजिट में था? किसी को समझ में नहीं आया तो पूछे। यस मैम। वेरी एक और न्यूमेरिकल दे रही हूँ, ये आपका होमवर्क है, आप लोग उसको करके लाएंगे। यूजिंग सुपरपोजिशन theorem, find the current through resistor R in the figure. ठीक है, ये आपका नेटवर्क है और इसके अनुसार आपको सुपरपोजिशन थ्योरम लगा के यू हैव टू फाइंड आउट द करंट इन दी 8 ओम रेजिस्टेंस, दैट इज दी 8 ओम रेजिस्टेंस इज नथिंग बट दी आर रेजिस्टर, है ना, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसमें आपको सुपरपोजिशन अप्लाई करना है। दो सोर्स है, एक करंट सोर्स और एक वोल्टेज सोर्स। आया किसी का, किसी बच्चे का?